Hello, everyone. I am Ashish Mangal, a member of Forum for Democracy. A warm welcome to everyone participating. I welcome you all to the international webinar on reproductive health and sexual health education, physical and psychological concerns. We have with us today Dr. Shuchi Bharti as the convener of the webinar. She has professional and research consulting experience in government and non-government sectors, as well as in firms like Ernst& Young and KPMG, with exposure of advisory, managing complex projects, working with cross-functional and cross-cultural teams. Her teaching and research focus lies in the area of labor and employment legislation, international law, and human rights. I welcome Dr. Shuchi and request her to proceed with this webinar. Dr. Shuchi Bharti. Thank you so much, Ashish. A very good evening to all the participants here and the resource persons. I welcome you all to the international webinar on reproductive and sexual health education, physical and psychological concerns. Forum for Democracy started this webinar series, India Amidst Pandemic, Changes, Challenges and Conversations. This webinar is the second of the sub-theme, Bringing Women and Sexual Health in Discourse. Today's webinar is being conducted by Forum for Democracy, a not-for-profit and independent non-governmental trust, Delhi, in association with Rotary Club of Delhi Legacy, Rotary International, and the organization Sachi Saheli. So we have to understand that COVID-19 has changed the global scenario, and the debate doesn't really stop at the disease and its spread or the treatment, but it extends to several other vital questions around human life. One of the very important questions that arises out of this pandemic and its impact is how we look at the women and sexual health. Against this backdrop, Forum for Democracy and Rotary Club of Delhi Legacy decided to come together on this imperative issue and brought into conversation menstrual health management, challenges amidst COVID-19, our first webinar of this series that took place on 28th May. The holistic discussion pertaining to biology, psychology, and socioeconomic attribute around menstruation were not only welcomed by women from all walks of life, but very well taken by men, institutions, organizations, educators, and practitioners, and so on. So we bring to you today a very pertinent issue that is mostly left neglected and doesn't see the light of the day in public discourse due to socio-cultural aspects and reluctance to have an open dialogue. We feel it is essential to talk out loud and clear about issues of sexual health and dissemination of its knowledge without taboos, without stigma and barriers. Especially in this particular circumstance when world is facing an immense unprecedented situation and access to institutional healthcare is a blazing challenge, specifically for the poor and marginalized. So as the health systems are increasingly strained, sexual and reproductive healthcare services are often mischaracterized as non-essential or the elective thing and de-emphasized with critical consequences. Framing sexual and reproductive health in the context of the pandemic would require engagement of all the stakeholders. So in this webinar, we do look forward to have an unambiguous conversation around various problems associated with adolescents, people from reproductive age, and the effects of various cultural practices, gender disparity, and environment. Some of the focus areas that we bring into discussion are polycystic ovarian syndrome, that is PCOS, unintended pregnancy, STIs, HIV/AIDS, sexuality, and stigma, around many others that would come in the due course. The objective of this webinar series is to explore new innovative methods to strengthen the advocacy and action to design a sustainable community delivery. So we have with us today two very eminent women from their respective fields who have been true change makers in their own stride and have always strived for excellence to contribute to the betterment of the society. I welcome Dr. Nishat Vajti, a fellow of American College of Obstetricians and Gynecologists, member of Royal College of Obstetricians and Gynecologists, also member of Royal College of Physicians, Ireland,
She's been a practicing gynecologist in the Cloud9 group of hospitals and has a proven track record of independently handling high-risk obstetric cases, as well as has expertise in reproductive and also, we have Dr. Surbhi Singh, practicing gynecologist and founder of NGO Sachi Saheli. She has been tirelessly working with a mission to fight social taboos, break the stigma, and give the voice to everything that the society hesitates to discuss. I welcome both the panel experts as we start our session. I would request the audience to please place their respective questions in the chat box, and we would try to take that up in the question answer round that is placed at the end of both the sessions after we finish the session. We would try to take up as many questions as possible, but we also have to look into the time concerns in mind. Dr. Nishat Wajdi would be discussing about one of the most common disorder, that is PCOS and its biology. PCOS has resulted into many women suffer in silence, impacting the social life and self-confidence. So I now invite Dr. Nishat Wajdi to share her knowledge with us. Dr. Nishat, over to you. Hello, everyone. Very good evening to all of you. Am I clearly audible and visible? Yes. Yes. Okay. Thank you. So a very warm good evening to all of you. And I would like to thank Forum for Democracy and Sachi Saheli and Rotary Club Delhi for giving me this platform to share my knowledge and experiences regarding one of the most common and crippling health issues in today's world, especially affecting females. And I would like to thank Dr. Shuchi Bharti and Dr. Nandini to organize this webinar which has the potential to bring about the change in women's thinking and their lifestyle. So to myself, Dr. Nishat Wajdi, I'm a practicing gynecologist. And so shall we begin the session today? So today we will be discussing on polycystic ovarian syndrome, which is one of the most common health issues faced by today's generation. And so I have divided my presentation to begin with what it is all about, what are the signs and symptoms, what causes it, what is the diagnosis, how we make it, and what the management options, what are the risk of other health problems and the potential long-term health implications, and how are we going to prevent such long-term health problems. Next slide, please. Yes. So what is polycystic ovarian syndrome? So it's basically a hormonal imbalance, which is multifactorial in origin. And as all of you know, I think Hindi also, it's comfortable, right? Okay. Very much. You may mix the language in as per your comfort. Okay, sure. Thank you. So the thing is, जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं कि normal menstrual cycle जो होता है वो 28 to 30 days का होता है. उस दौरान जैसा अगर आप फोटो में देखें तो in a month at one point of time सिर्फ एक follicle होता है जो mature होता है और एक 28 day cycle में day 14 के around वो mature होकर ovulate होता है और ovulation के बाद जो फीमेल हार्मोन्स होती हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होती हैं एंड बाय 28 डे हमारे मेंसेस होते हैं. तो दैट्स हाउ अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्क्स. बट इन केस ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम व्हाट हैपेंस इज कि उस एक फॉलिकल की जगह एज यू कैन सी इन द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डायग्राम मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं जो एक साथ मैच्योर होना लग जाते हैं. बट ये मैच्योर होने की जगह ये इमेच्योर स्टेज में ही अरेस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नॉर्मल मेंसेस होने चाहिए या ओव्यूलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है. So this is the basic physiology which happens in case of polycystic ovarian syndrome leading to multiple hormonal imbalance. यही reason है which leads to infrequent or prolonged menstrual periods. Excess male hormone जिसको कि androgens कहते हैं उनका excess हो जाता है body में
एंड एट द सेम टाइम अगर अल्ट्रासोनोग्राफी देखें तो उसमें मल्टीपल स्मॉल सिस्ट होते हैं, जो कि कुछ नहीं, ये मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी में हमें दिखाई देते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So how common is PCOS? It is one of the most common lifestyle diseases. और देखा जाए तो around 10 to 15% of the female population are currently affected by PCOS worldwide. कहने का मतलब ये है कि अगर हम हर 10 फीमेल्स में देखें तो हर 10 फीमेल में से एक फीमेल जो होगी, she must be suffering from PCOS. This is how common it is. But at the same time, इसका बहुत ही broad spectrum होता है presentation का. जरूरी नहीं कि सब में बहुत serious हो, किसी में बहुत mildly affect करता है, किसी में बहुत ज्यादा symptoms होते हैं. But at the same time, इसके risk काफी हैं, long term health risk जो होते हैं. 50% of women जो होती हैं वो undiagnosed रह जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें PCOS है. 50% of women जो हैं बिफोर एज 40 who are suffering from PCOS, उन्हें डायबिटीज डेवलप हो जाती है. डायबिटीज मतलब जिसमें शुगर का इम्बैलेंस हो जाता है. 3 times रिस्क ऐसे विमेन में एंडोमेट्रियल कैंसर, मतलब यूट्रस का जो कैंसर होता है, यूट्रस मतलब वूम या गर्भ जिसे कहते हैं हिंदी में, 3 times कैंसर का रिस्क उनमें बढ़ जाता है. तो आप समझ सकते हैं, कहने को बहुत ही कॉमन बीमारी है, बट इसके सीरियस हेल्थ रिस्क भी होते हैं जो कि हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे. बट इसकी ये चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है कि इस डिजीज को हम लोग समझें, इसकी अवेयरनेस फैलाएं, ना कि सिर्फ फीमेल्स बल्कि मेल्स भी समझें इनके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं फीमेल्स पे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो अब बात करें साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस. काफी वेरिड प्रेजेंटेशन होता है, जरूरी नहीं कि सारी फीमेल्स में एक ही तरीके का प्रेजेंटेशन हो. और अल्ट्रासोनोग्राफी में जैसा हमने डिस्कस किया, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ऐसा लगता है जैसे कि पर्ल्स हैं, पर्ल्स ओवरीज में ऐसा लगेगा कि नेकलेस हैं पर्ल्स की, वैसी अपीयरेंस हमें दिखाई देती है. एंड दीज आर नथिंग बट इमेच्योर फॉलिकल्स जो कि 10 से 12 इन नंबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. ओवरी का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इसमें जो मेंसेस होती हैं वो रेगुलर नहीं बल्कि काफी ज्यादा पीरियड का गैप जो होता है वो अक्सर बढ़ जाता है. लाइक 2 to 3 months का गैप भी हो सकता है. नॉर्मली जैसे मेंसेस 4 to 5 days होती हैं फीमेल्स में, तो ये जो ड्यूरेशन होता है वो भी कम हो सकता है, मतलब 2 to 3 days हो जाएगा. या फिर जो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी इन द सेंस कि सपोज कोई फीमेल 2 to 3 पैड्स यूज कर रही है डेली, बट इन केस ऑफ अ पीसीओएस पेशेंट हो सकता है कि शी माइट बी यूजिंग जस्ट 1 पैड इन अ डे. मतलब अमाउंट में भी कमी होगा, ड्यूरेशन में भी कमी होगी, साथ ही साथ जो साइकिल के बीच में गैप होता है वो भी बढ़ सकता है. तो इस टाइप की प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जो है, दीज आर क्वाइट वेरी कॉमन इन केस ऑफ पीसीओएस फीमेल. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इनफर्टिलिटी. नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स जो कि होता है पीसीओएस फीमेल्स के साथ, is that it's one of the leading causes of infertility in women in today's world. And because क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, जो एग बनना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से पीसीओएस बहुत ही कॉमन कॉज है इनफर्टिलिटी का. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब जो हमने बात करी थी कि जो मेल हार्मोन्स हैं जो फीमेल्स में एक्सेस हो जाते हैं, थोड़े बहुत क्वांटिटी में है तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट पीसीओएस में उनका क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है. अनवांटेड साइट्स मतलब जैसे कि फेशियल हेयर ग्रोथ हो गया, एब्डोमेन हो गया, जहाँ पे नॉर्मली हेयर ग्रोथ नहीं होना चाहिए, वहां पे हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती हैं फीमेल्स के केस में, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में हिर्स्यूटिज्म कहते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. मेल हार्मोन्स के एक्सेस की वजह से ही फीमेल्स को एक्ने की प्रॉब्लम्स, और क्योंकि सीबम ज्यादा बनने लगता है, ऑयली स्किन हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन होती हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब आप देखें तो इसमें मेल पैटर्न बॉलनेस की भी प्रॉब्लम है, या थिनिंग हेयर. मतलब आप ये समझें कि जहाँ पे हमें हेयर नहीं चाहिए वहां पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और जहाँ पे हेयर ग्रोथ होना चाहिए वहां से इनफैक्ट लॉस शुरू हो जाता है. तो यही बेसिकली हार्मोन्स जो होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से थिनिंग ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर, और इसमें जो बॉल्डनेस होती है वो मेल पैटर्न मतलब कि जो सेंट्रल पोर्शन है स्कैल्प का, वहां से
बाल काफी ज्यादा गिरने लगते हैं, थिनिंग होती है, और जो फ्रंटल हेयर लाइन होता है, मतलब आगे की जो हेयर लाइन होती है, वो भी रिसीड होने लगती है, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक और प्रॉब्लम जो होती है इन तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जहां पे भी स्किन फोल्ड है, जैसे कि नेक का एरिया हुआ, या आर्मपिट्स हुए, या फिर एब्डोमेन में जहां स्किन फोल्ड है, या ब्रेस्ट के नीचे जहां स्किन फोल्ड है, वहां पे स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन मतलब ब्लैकनिंग शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोनल इम्बैलेंस। ये भी काफी ज्यादा कॉमन होता है पीसीओएस फीमेल्स में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्किन टैग्स भी हो सकती हैं। ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब में सारे सिम्टम्स हो। किसी में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, किसी में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स ज्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वेट गेन और ओबेसिटी ये बहुत ही कॉमन होता है, और इसमें जो वेट गेन होता है वो स्पेशली बेली एरिया में, मतलब कि जहाँ पे जो स्टमक एरिया होता है, वेस्ट के पास का एरिया, वहां पे काफी ज्यादा वेट गेन होता है। बहुत ही कॉमन है ये। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। साथ ही साथ कुछ फीमेल्स में पेल्विक पेन भी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है समझना कि इन सारे बॉडी चेंजेस की वजह से एक फीमेल जो होती है वो अपने आप को नॉर्मल फीमेल की तरह परसीव नहीं कर पाती है। उसे लगता है उसमें कुछ कमी है, कुछ एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से उसमें एक डिप्रेशन, एंजाइटी या एक नेगेटिव बॉडी इमेज वो फीलिंग डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से लो सेल्फ स्टीम और ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है पीसीओएस फीमेल में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो पहले हमने देखा कि पहली बात तो ये कि पीसीओएस इट्स वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज व्हिच इज in fact causing infertility. Now suppose if a woman who has PCOS gets pregnant, then what are the how does it going to how does it affect the pregnancy? So उसमें अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है पीसीओएस पेशेंट्स में। साथ ही साथ क्योंकि इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज का रिस्क, ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क, जिसको कि हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज और प्रीक्लैम्सिया कहते हैं मेडिकल टर्म्स में, इसका भी रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और प्री मेच्योर डिलीवरी मतलब नॉर्मली 9 मंथ्स कंप्लीट होने पे डिलीवरी होती है, बट 37 वीक्स कंप्लीट होने के पहले ही अगर किसी में डिलीवरी होती है तो उसे हम प्री मेच्योर डिलीवरी कहते हैं। तो इन सारी चीजें, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के दौरान हो सकते हैं फॉर अ पीसीओएस फीमेल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हम बात करें व्हाट कॉजेज पीसीओएस। तो अगर हम समझें एक्चुअल कॉज जो है वो अननोन है। अभी तक कॉज जो है, एग्जैक्ट कॉज अननोन है, बट बहुत सारे फैक्टर्स, इसलिए कहा ही जाता है कि दिस डिजीज इज बेसिकली मल्टी फैक्टोरियल इन ओरिजिन। और हम बात करें तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं। लाइफस्टाइल इन द सेंस कि हम डेली रूटीन हमारा क्या है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या फिर हम एक्टिव जिंदगी जी रहे हैं। तो जो उनका भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या जो थोड़े ओबेज हैं, और जेनेटिक फैक्टर्स, ये सारे मिलके हार्मोनल चेंजेस करते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से जो मेल हार्मोन्स जिनको हम एंड्रोजेंस कहते हैं उनका अमाउंट बढ़ जाता है, और उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, एक्सेस हेयर ग्रोथ होना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एट द सेम टाइम इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है, बट इन पेशेंट्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। कहने का मतलब ये है, इवन दो in our blood insulin is there but it is not able to act because of insulin resistance. तो इसलिए बॉडी में इंसुलिन होने के बावजूद भी इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं, और ऐसे पेशेंट्स में डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप समझें कि डायबिटीज अगर हो गई किसी को इतनी अर्ली एज में, तो उसके लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क काफी ज्यादा हो सकते हैं, इंक्लूडिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ रिस्क, बीपी बढ़ना, शुगर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसे फीमेल्स में कॉमन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब कैसे पता करें, कैसे किसी फीमेल को पता चले कि उसे पीसीओएस है? तो अगर इन ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो उनसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर जो है उनसे हिस्ट्री लेगा। हिस्ट्री मतलब क्वेश्चंस पूछेगा कि उन्हें क्या सिम्टम्स हैं, क्या परेशानी है,
वेट चेंजेस और ये सारी चीजें, जरूरत पड़ी तो एग्जामिनेशन की भी जरूरत, इन द सेंस कि ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, बीएमआई चेक किया जाएगा, हाइट वेट ये सारी चीजें, वेस्ट साइज क्या है, ये चीजें चेक की जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, पेल्विक एग्जामिनेशन ऐसे ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती है पीसीओएस फीमेल में, अनटिल एंड अनलेस कि देखना हो कि ओवरी का साइज बढ़ा है या कम है। ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है जिसमें हार्मोन लेवल देखते हैं, और अल्ट्रासोनोग्राफी जैसा हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम बात करें ट्रीटमेंट गोल्स, तो हमारे ट्रीटमेंट जो गोल्स हैं वो ये हैं कि डिपेंड करता है बेसिकली कुछ फैक्टर्स पे, कि पहली बात तो ये कि अभी आपको क्या सिम्टम्स हैं, दूसरी बात ये कि आप किस एज ग्रुप में हैं, आप यंग एंड एडोलेसेंट हैं या आप मैरिड हैं और आप कंसीव करना चाहते हैं, हैविंग प्रॉब्लम्स व्हाइल कंसीविंग। दूसरी बात ये इस पे डिपेंड करता है कि आपको उसकी वजह से कोई दूसरे कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, लाइक डायबिटीज या हाइपरटेंशन। तो बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स आपका मैनेजमेंट डिपेंड करता है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो कि मैं अभी डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या चीजें हैं? सो यू कैन हेल्प मैनेज योर पीसीओएस बाय ईटिंग हेल्दी एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली टू कीप योर वेट एट अ हेल्दी लेवल। सो हेल्दी ईटिंग टिप्स इंक्लूड, आपके क्या क्या टिप्स हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं डेली लाइफ में? लिमिटिंग प्रोसेस्ड फूड्स एंड फूड्स विद एडेड शुगर, कहने का मतलब है आप कैंड फूड, रेफ्रिजरेटेड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल अवॉइड करें। शुगर जो है अवॉइड करें, एडेड शुगर्स। और डाइट में फाइबर ज्यादा इंक्लूड करें, ज्यादा शामिल करें, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए। और मीट अगर आप लेते हैं तो लीन मीट लें, जैसे कि चिकन है, और रेड मीट जो है वो अवॉइड करें। इससे क्या फायदे होंगे? इससे एक तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मलाइज होगा, जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रखा है वो नॉर्मलाइज होगा, साथ ही साथ जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो भी नॉर्मलाइज होंगे। ठीक है, तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि मेडिसिन अपनी जगह हैं, बट जो कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, जैसे कि एक ओल्ड एज में बीपी और शुगर की लाइफस्टाइल डिजीज होती है, वैसे ही एक यंग एज की लाइफस्टाइल डिजीज है जिसको कि हम डाइट, एक्सरसाइज और इन सारी चीजों से कंट्रोल कर सकते हैं। और 10% बॉडी वेट लॉस से भी काफी ज्यादा देखा गया स्टडीज में कि आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं अपने पीरियड्स को और रेगुलराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये डाइट, yes Dr. Shruti? Yeah, Dr. Nishat, maybe we can conclude and take up the questions in Okay, some just time. 1 minute, Yeah, just sure. 1 minute. Yeah, I'll finish in just 1 minute. So PCOS डाइट में आप डेयरी, ग्लूटेन, प्रोसेस्ड फूड ये सब अवॉइड करें और हाई फाइबर और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इंक्लूड करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक्सरसाइजेस हैं, इसमें ये ध्यान रखिए कि एक वीक में एटलीस्ट 3 टाइम्स 30 मिनट्स के लिए आपको एक्सरसाइज करना है। उसमें आप योगा, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, स्विमिंग, जो भी आप कर सकें आप कोशिश करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये बेनिफिट्स हैं जो हमने डिस्कस किया, जो कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रही थी, वो सारे बेनिफिट्स हमें मिल जाएंगे अगर हम वेट को लूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो मैनेजमेंट ऑप्शंस मैं क्वेश्चंस में डिस्कस कर लूंगी क्या क्या हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो हमने बात करी थी कि ये सारे लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन और एंडोमेट्रियल कैंसर, वूम का जो कैंसर होता है, इन सब का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है पीसीओएस फीमेल्स में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अगर हम if we eat right and do exercise regularly, if we do not smoke, if we change our lifestyle, basically we can prevent those long term health risks. Next slide please. तो ये हमारा गोल है, पीस फॉर प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब कि आप मेंटल प्रिपरेशन करें विद द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर दोज फीमेल्स। सीज फॉर कम्युनिकेट, कम्युनिकेट सिर्फ उस फीमेल के साथ नहीं बल्कि मेल्स और बाकी उसकी सोसाइटी के साथ भी कम्युनिकेट करें कि उन फीमेल को क्या प्रॉब्लम है। O is for overcome, जिसमें आपको असिस्ट करना है वुमेन को who are suffering from PCOS overcome her symptoms.
S is for support. Support बहुत important है और बहुत सारे PCOS support groups भी हैं जिसको आप contact कर सकते हैं अगर आपको PCOS है. Okay, thank you so much. Thank you so much, Dr. Nishad. That was really an eye-opening and a very lucid session. And the whole changed meaning of PCOS and such a positive connotation to it definitely gives a lot of hope. And I'm sure there shall be a lot of questions from our participants. We'll take them at the end. And as Dr. Nishat explained us, that PCOS is the most common hormonal disorder in women. And among young women as well. They come with a bunch of allied problems. Not only they bring down the quality of life, but also results into issues pertaining to behavior, public and private life. I have also observed and experienced that there are socio-cultural facets which young people, young girls and boys and adolescents, they face. So there is a very important point here to build voices around it, make our spaces and narratives more degendered. So without further delay, I would want to invite Dr. Surbhi Singh. And Dr. Surbhi Singh, thank you so much for joining us again for the second webinar, which specifically aims to reach out to young people, adolescents, youth, and people from reproductive age group to help them seek knowledge without shame and stigma. I invite Dr. Surbhi to share her knowledge of this field, and she has been one of the strongest proponents of the Living Without Stigma and Stereotype campaign. So over to you, Dr. Surbhi. Hi, good evening, everybody. Thank you, FFT, thank you, Rotary Club, thank you, Shuchi, and thank you, Nandini ma'am, for inviting me again. And I'm very happy कि बहुत सारे लोग मुझे सुनने के लिए हैं यहाँ पे. आप लोग हमेशा बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं सेमिनार्स और ये वेबिनार्स कि मतलब देखने वाले को भी अच्छा लगता है कि चलो इतने सारे लोग आपके साथ हैं. And I'm welcoming all of you to be here. So today, my topic is I should start with puberty, क्योंकि मुझे लगता है सवाल सबसे पहले वहीं खड़े होते हैं. सबसे पहले ये कि मेरी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है ये हमें सबसे पहले प्यूबर्टी में शुरू होते हैं. Being a gynecologist, I practiced for 14-15 years in East Delhi in my own clinic. बट मुझे लगता है कि डिजीज ट्रीट करना डॉक्टर का काम है, लेकिन अवेयरनेस देना भी डॉक्टर का काम है. मेरी बॉडी में क्या हो रहा है और मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये बताना भी हम में से किसी को होगा. तो शायद इसी सोच से मैं अपने क्लिनिक को छोड़कर आजकल स्कूल्स में और बहुत सारी जगह पर हम बाहर निकलकर बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं. और मेरी अपनी ये संस्था है सच्ची सहेली, जिसके थ्रू हम मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस पे बात करते हैं. तो आज जो बात मैं करने जा रही हूँ, जैसे सबसे पहले क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है देखने में कि यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं, तो मुझे सबसे पहले ये समझना है कि हमें से कितने लोग, आप सबके पास एक रिएक्शन बटन होता है, आप ये बताइए कि हमें से कितने लोग कंफर्टेबल हैं अपने बच्चों के साथ या खुद आपस में इस तरह से सेक्स जैसे टॉपिक पर बात करने में, मेंस्ट्रुएशन और मतलब ऐसे कितने टॉपिक्स पे. एक थम्स अप का बटन है, अगर आप वो नीचे रिएक्शन में जाके दबाएंगे तो मुझे समझ आएगा कि कितने लोग कंफर्टेबल हैं या कितने लोगों ने कभी बात की है अपने प्यूबर्टी एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ, या आपस में उनको लगता है कि दे कैन डिलीवर देयर राइट नॉलेज टू देयर किड्स. मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है. इवन मैं एक डॉक्टर हूँ और जब मुझे पहली बार अपने बेटे को ये बताना था कि मुझे बहुत सारी बार में लगा कि सेक्स एजुकेशन देनी है, तो मेरे लिए भी 3 जो है ना रातें ऐसी थी जो मैं सो नहीं पाई. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बताना कैसे होगा, करना क्या होगा. मतलब उसकी रिएक्शंस मुझे ज्यादा परेशान कर रही थी कि उसने कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जिसके लिए मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं में मान के बैठे होते हैं कि बच्चों को तो सब पता है. कैसे पता है? अरे इंटरनेट पे सब है. लेकिन क्या इंटरनेट पे नॉलेज बहुत है, लेकिन क्या सही नॉलेज है? राइट नॉलेज बहुत सारी होना और राइट नॉलेज होने में बहुत फर्क है. तो हम ये मान के बैठे कि बच्चों को सब पता है, इससे काम नहीं चलेगा. राइट नॉलेज है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. हम अगर अपने में देखें तो मुझे अपने टाइम का याद है, हमें किसी ने कभी कोई फॉर्मल नॉलेज नहीं दी अबाउट सेक्स एजुकेशन, अबाउट पीरियड्स. मतलब मेरी लाइफ में पीरियड्स भी एक एक्सीडेंट की फॉर्म में आया. ऐसा लगा जैसे कि जिंदगी में कोई पता नहीं भारी दुर्घटना हो गई है.
ब्लड कैसे आ सकता है, और मैं ये सोच के कि ब्लड कैसे आ सकता है, मतलब मैं पूरी शाम रोती रही कि ब्लड कैसे आ सकता है। उतनी कितने ख्याल आ गए, कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं ये तो नहीं हो गया, बार बार सोची चोट भी नहीं लगी, ऐसा क्या हो गया। मतलब पूरी ऐसा लगा कि जैसे मम्मी अब मुझसे भरवा ले फॉर्म की लास्ट मेरी आखिरी इच्छाएं क्या है, पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। एंड जब मम्मी के पास गई तो मम्मी ने बोला सबको होता है, ये पकड़ कपड़ा लगा ले, कुछ नहीं है। मैं बस यार बता देते तो मतलब मेरी जो इतनी बुरी हालत, इतनी एड्रेनलिन मेरा सिक्रीट हो गया इतनी देर में कि पता नहीं मेरे साथ जिंदगी में ऐसा क्या एक्सीडेंट हो गया। और विश्वास कीजिए कि आज भी हो रहा है, ये मेरे साथ की 25 साल पुरानी घटना नहीं, ये आज भी हो रहा है। आज भी बच्चियां डर जाती हैं, सहम जाती हैं, स्कूल से जाना चाहती हैं, रोने लगती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया है। आज भी हम उतने कंफर्टेबल नहीं हुए हैं, बहुत से पेरेंट्स नहीं हुए जिनको नहीं पता समझ में आता कि कब बताना है। मतलब बहुत सारी जगहों पे तो हम यहाँ भी श्योर नहीं है कि बताना कब है, बच्चों से बात कब शुरू करें, होने के पहले या होने के बाद। क्या सिर्फ लड़कियों को बताएं या लड़कों को भी बता दें? क्या पापा मम्मी मतलब पापा बताएं कि मम्मी बताएं, टीचर बता देना चाहिए कि हमें बताना चाहिए? बहुत सारे कंफ्यूजन है। रीजन ये है कि जैसे अगर मैं एक लड़की थी, कभी मुझे नहीं बताया गया, मुझे सिर्फ एक बात बताई गई थी, मेरे कंधे पे यहाँ एक भूत बिठाया गया था जो मुझे पूरे टाइम याद दिलाता था किसी को पता ना चल जाए, किसी को पता ना चल जाए। और मैं पूरी जिंदगी इस भूत को ही लेके घूमती रही कि बस किसी को पता ना चल जाए। ये भूत लेते लेते मैं शादी भी हो गई, मैं मदर भी बन गई और मेरे पास एक बेटी भी हो गई। लेकिन इस भूत को उतारने की हिम्मत नहीं आ पाती कि अब क्या करें, अब जब बेटी को पीरियड्स आने वाले तब क्या। तो ये एक जर्नी है जो हर कोई किए जा रहा है, क्योंकि हमें वो शब्द नहीं मिले, वो वोकैबुलरी नहीं मिली कि बताना कैसे है। अगर मैं बताना भी चाहूँ अपनी बेटी को तो कैसे बताना होता है, मुझे तो ये पता ही नहीं है। मेरे पास वो शब्द आ ही नहीं पाते कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ अपने बच्चे को। तो यह यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं, जो एल्डर्स हैं, चाहे वो यंग मतलब अपनी उनकी छोटी बहन है, बेटी है, या घर में कोई भी है, तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि सबसे पहले तो इसके लिए जो भी चीजें हैं जैसे मेंस्ट्रुएशन, इनके लिए नेगेटिव एटीट्यूड क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मतलब जिस तरह से जिंदगी में आता है और जिस तरह से ये भूत कंधे पे बिठाया जाता है ना कि किसी को पता ना चल जाए, इसकी वजह से हमेशा ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ गलत हुआ है, कुछ पाप हो गया है शायद कि जो नहीं बताना है। अभी बल्कि जोक पढ़ रही थी, मतलब कोरोना में बहुत सारे जोक चले हैं कि अगर 2-4 साल ये मास्क लगाना पड़ा तो कहीं माउथ और नोज को भी प्राइवेट पार्ट ना घोषित कर दिया जाए कि सबके सामने मास्क हटाना है कि नहीं। मतलब कुछ बातें इतनी ज्यादा कुछ सालों तक चलती हैं तो वो मतलब अपने आप से बिना कुछ कहे ही वो निषेध हो जाती है कि नहीं, इसके बारे में तो बात नहीं करनी है। तो ऐसे ही हमारे कुछ टॉपिक हैं जैसे मेंस्ट्रुएशन और सेक्स एजुकेशन, जो कि आज की दुनिया के मतलब आज के जमाने में या हमसे बहुत पहले के जमाने से निषेध हो गए हैं कि नहीं भाई, इनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि कब बताना है लड़कियों में। मैम अगर आप मेरे को या तो स्क्रीन शेयर कर सके या मेरी स्लाइड्स एक बार लगा सकें प्लीज। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहली बात सवाल बॉडी, सबसे पहले लोग सोचते हैं कि सेक्स एजुकेशन या मेंस्ट्रुएशन के बारे में कब बताना चाहिए। ये कोई ऐसी नॉलेज नहीं है कि जिसे कोई पूछे कि मैथ्स कब पढ़ाना चाहिए। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे जैसे हर स्टेज पे इसमें कुछ नया ऐड होता है वो जुड़ते रहना चाहिए। उसी तरह से सेक्स एजुकेशन भी है, इसमें एक दिन में सब कुछ नहीं बताया जाना। आपकी बॉडी बताती है कि कब बताना चाहिए। आपकी बॉडी में चेंजेस शुरू हो रहे हैं, बच्चे की बॉडी में चेंजेस शुरू हो रहे हैं। आपको दिख रहा है कि बच्चे को आप नहलाते हैं, उसको आपको दिखाई देने लगता है कि बच्चे में ब्रेस्ट बर्ड्स आने लगे हैं, बच्चे के आर्म्स में बाल आने लगे हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो इसमें जैसे आप देखेंगे कि ये अब फीमेल्स और मेल्स में बहुत सारे चेंजेस धीरे धीरे हमारी बॉडी में होने लग रहे हैं। एक नॉर्मल बॉडी जो कि एक ट्रांजिशन है, जैसे समझ लीजिए कि ये 8 साल का बच्चा है यहाँ पर और उसके बाद ये 18 ईयर्स का है, तो इसके बीच में 10 साल का ट्रांजिशन है, 10-12 साल का, जिसमें कि एक बच्चे से एडल्ट में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये ट्रांजिशन है जिसमें बॉडी में धीरे धीरे थोड़े थोड़े बदलाव हो रहे हैं। लड़कियों में 8 ईयर्स के अराउंड प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी का मतलब कि उसमें ब्रेस्ट बर्ड्स आने लगते हैं, आर्म्स में हेयर आने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी लंबाई बढ़ने लगती है। 9 to 16 ईयर्स के बीच में, यानी कि 9th बर्थडे जब उसका आता है, उसके बाद से लेके जब तक उसका 16th बर्थडे होता है, यानी 9th और 16th बर्थडे के बीच में कभी भी उसको पीरियड्स आते हैं, जिसको फर्स्ट पीरियड को हम मेनार्क भी बोलते हैं। तो फर्स्ट पीरियड आते हैं, लड़कों में थोड़ा सा लेट शुरू होती है, लगभग 2 साल का डिफरेंस मान लीजिए, तो 11 to 18 ईयर्स पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जब बॉडी में ये चेंजेस हो रहे हैं उसी वक्त अपने बच्चों से बात करनी है, उसी वक्त उनको समझाना है कि बेटा आपकी बॉडी में ये चेंज हो रहे हैं, आज आपके ब्रेस्ट बर्ड आए हैं, कल आपके बड़े भी होंगे, ब्रेस्ट बड़े भी होंगे। ब्रेस्ट में कोई मसल्स या बोन्स नहीं होते तो आपको इसको सपोर्ट करने के लिए ब्रा भी पहनना पड़ेगा, कुछ अलग तरह के कपड़े भी होंगे। आपके आर्म्स में हेयर आ रहे हैं, आपके प्यूबिक एरिया में हेयर्स आ रहे हैं, तो आपको साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप इनको क्लिपिंग कर सकते हैं,
हैं रेजर या कोई ऐसी क्रीम मत लगाइए जिससे कि आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन हो जाए, या गलती से आप कोई कट लगा लें। तो बेहतर है कि छोटी वाली सीजर से या तो मदर हेल्प कर दें, या जब अभी एकदम शुरुआत में जरूरत भी नहीं होती, धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो कम से कम 1 सेंटीमीटर के अराउंड हेयर छोड़ के उसकी क्लिपिंग की जा सकती है। इससे ज्यादा छेड़खानी ना करें क्योंकि बच्चे भी बहुत छोटे होते हैं, स्किन सॉफ्ट होती है। इसके अलावा जैसे चेंजेस और बॉडी में दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि उसकी मतलब लड़कियों में पिंपल्स भी आने लगते हैं, बॉडी की शेप चेंज हो जाती है, हाइट बढ़ने लगती है। लड़कों में फेशियल हेयर ग्रोथ लंबाई होने लगती है, पिंपल्स आने लगते हैं, प्यूबिक हेयर आते हैं, अंडर आर्म्स हेयर आते हैं, वॉइस चेंज होती है। इसके अलावा 3 ई और होते हैं जो लड़कों में कॉमन है, जिनको हम ट्रिपल ई भी बोल सकते हैं। इसमें है इजैकुलेशन, की अचानक से पेनिस इरेक्ट होती है और सीमेन बाहर निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, कोई रीजन नहीं होता, अचानक से कभी भी ऐसा हो जाता है। ये कभी कभी सोते हुए ज्यादा होता है, जब बच्चा नाइट में सो रहा होता है तब उसके साथ ज्यादा होता है। कोई अजीब सा ड्रीम आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, जब वो जरूरी नहीं कि कोई बहुत रोमांटिक ड्रीम हो, अचानक सोते हुए उसकी बेड में उसकी पेनिस इरेक्ट होती है और सीमेन निकल जाता है। इसको हम नाइट ड्रीम्स या वेट ड्रीम्स भी कहते हैं, या नॉक्टर्नल इमिशन भी कहते हैं। तो एमिशन, इजैकुलेशन, इरेक्शन, कभी कभी सडनली बच्चा सो के उठता है अर्ली मॉर्निंग और उसको पता नहीं होता, कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं किया, और उसको सडनली बॉडी में सडन रश ऑफ ब्लड होता है पेनिस में और पेनिस इरेक्ट हो जाती है। बच्चे डर जाते हैं, उफ मेरे को ये क्या हो रहा है, शर्माने लगते हैं, कमरे से बाहर निकलने से डरते हैं, सुबह बेड पे देखते हैं कि कुछ गीला है तो डर घबरा जाते हैं, क्या हो रहा है। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल फिजियोलॉजिकल है, आपकी बॉडी तैयार हो रही है, ट्रांजिशन में है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपकी बॉडी पे, बहुत सारे नए हार्मोन्स आ रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें हो रही हैं, तो इनसे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मैम। अगर हम सिर्फ पीरियड्स की बात करें तो बहुत सारी, जैसे कि राइट एज ऑफ पीरियड इज 9 to 16 ईयर्स। फर्स्ट पीरियड को मेनार्क बोलते हैं। नॉर्मली पीरियड साइकिल 21 से 35 डेज की होती है। स्टार्टिंग में ये साइकिल 45 डेज तक भी हो सकते हैं। किसी किसी में जेनेटिकली बहुत किसी किसी की होती है कि मम्मी को, मौसी को, बुआ को और या बड़ी बहन को, किसी को साइकिल अगर ऐसी आती है कि 45 डेज तक भी आती है तो हम नॉर्मल मानते हैं। यूजुअली 21 से 35, बट 45 तक भी नॉर्मल है। स्टार्टिंग के 2 साल में जब पीरियड शुरू होते हैं तब ये साइकिल कभी कभी 3 मंथ और 6 मंथ तक भी डिले हो जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। तो हाँ, एक और बात ध्यान रखनी है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग, जिस दिन पीरियड स्टार्ट होते हैं वो डे 1 होता है। वहां से अगला पीरियड जब आने वाला है उसका जो डे 1 होता है, उन दो के बीच का डिस्टेंस, सपोज की नेक्स्ट मैम, जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि ये 2nd को पीरियड आया, 6 को खत्म हुआ, तो हमें खत्म होने वाली डेट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है 2nd को पीरियड आया, अगला पीरियड 25th को आया, तो 2 फर्स्ट डेज के बीच में जो गैप है वो मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है। यहाँ पर ये 1 महीने में 2 बार ब्लीडिंग हो गई तो लोग डर जाते हैं, अरे मुझे तो 1 महीने में 2 बार ब्लीडिंग होगी, तो क्या हुआ, आपकी साइकिल 21 डेज से ज्यादा है ना, तो नॉर्मल है। अरे मुझे तो 1 महीना ब्लीडिंग आई नहीं, तो क्या हुआ, आपकी साइकिल हो सकता है आपको लास्ट में पीरियड आया हो। नेक्स्ट मैम, अगर आपको लास्ट में पीरियड आया होगा तो वो साइकिल 1 महीना छूट भी सकता है। आपको सिर्फ 2 फर्स्ट डेज काउंट करने हैं, फर्स्ट डेज पे सर्कल लगाइए। जब कैलेंडर नहीं थे, डेट्स नहीं थी, तब भी पीरियड्स होते थे, तो पीरियड अपनी साइकिल के हिसाब से होते हैं, उसे जनवरी फरवरी नहीं आता देखना। उसकी साइकिल है 24 डेज की है तो एवरी मंथ आपको 6 डेज पहले ही आ जाएगा। अगर आपकी 40 डेज की साइकिल है तो हर बार 10 डेज चढ़ के ही आएगा। तो इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साइकिल 21 से 35, मैक्सिमम 45 डेज के बीच के, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए क्योंकि आपकी साइकिल ऐसी ही है। पीरियड्स की ब्लीडिंग यूजुअली 2 डेज से 8 डेज के बीच में होती है, मतलब 2 दिन भी हो सकती है, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, 8 डेज, अप टू 8 डेज, कितने भी दिन ब्लीडिंग हो सकती है, डरने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल है। हाँ, अगर 8 डेज ब्लीडिंग हो रही है और आपको लगता है कि हमेशा ब्लीडिंग कम नहीं हो रही है, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ब्लीडिंग उतनी ही चल रही है, 4 दिन हो गए, 5वां दिन लग गया है लेकिन ब्लड तो कम ही नहीं हो रहा है बहना, तो इसका मतलब ये थोड़ी सी हैवी है ब्लीडिंग, ये थोड़ा एबनॉर्मल है, डॉक्टर से मिल लीजिए। हाँ, अगर इसमें अलार्मिंग क्या है, अलार्मिंग का मतलब है कि आप वेट नहीं करेंगे कि आज देख लेते हैं कल। अलार्मिंग का मतलब है तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। कब, अगर आपको ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि आपको हर घंटे पे पैड बदलना पड़ता है, या मोटे मोटे ब्लड के क्लॉट्स निकल के आ रहे हैं, जो कि आपको लग रहा है कि जब भी आप टॉयलेट में जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, पेट में दर्द होता है, अचानक से बड़ा सा क्लॉट निकल के आ जाता है, तो इसका मतलब ये अलार्मिंग है, डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। हमने तो आई पिल खाया था, शायद इसलिए हो गया होगा, मैं तो वजन उठा लिया था, मैं गिर गई थी, मैंने तो मेडिकल अबॉर्शन की दवाई खाई थी, अरे बुढ़ापे में तो हो ही जाता है, अरे बाबा इतने सारे एक्सक्यूज मत दो खुद को।
ये एबनॉर्मल है, अलार्मिंग है, दौड़ो डॉक्टर के पास जाने, आपका जो कीमती खून है वो बह रहा है। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल भी इसमें अपने आप को एक्सक्यूजेस मत दो, बहाने मत बनाओ, तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ जाओ। नेक्स्ट मैम। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसके साथ वाइट डिस्चार्ज की भी होती है पीरियड स्टार्ट होने के कुछ महीनों पहले। जैसे कि अगर पीरियड्स आपको मई में स्टार्ट होने हैं तो हो सकता है कि आपको जनवरी या फरवरी से पैंटी पे बच्चे की कुछ म्यूकोइड सा, चिपचिपा सा, पानी जैसे रंग का वाटरी म्यूकोइड डिस्चार्ज दिखाई देने लगता है। ये नॉर्मल है, ये हमारी बॉडी की रोग से लड़ने की ताकत है, इसलिए इससे बिल्कुल घबराइए मत। क्योंकि ये समझ लीजिए कि एक तरह से पूरा वो पाथवे की सफाई हो रही है, क्योंकि यूट्रस का माउथ खुलने वाला है, तो कोई इन्फेक्शन फॉरेन बॉडी अंदर ना चला जाए, तो उससे पहले ये डिस्चार्जेस होना नॉर्मल है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करना है, ऐसा पीरियड शुरू होने के 1-2 दिन पहले और खत्म होने के 1-2 दिन बाद भी ये डिस्चार्ज होना नॉर्मल है, इसमें भी डरिए मत। लेकिन अगर इस डिस्चार्ज के साथ ये 5 सिम्टम्स अच्छे से याद कर लीजिए, और किसी कोई आसपास है तो उसको भी बता देना। 5 सिम्टम्स अगर है तो इसका मतलब ये डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो सकता है। क्या है वो 5 सिम्टम? इचिंग, बर्निंग, लोअर एब्डोमेन पेन, बैड ऑर्डर एंड चेंज इन कलर, खुजली, जलन, बदबू, कमर या पेट में दर्द, या इसका रंग बदल जाना। अगर इसका रंग गुलाबी हो गया है, भूरा हो गया है, पीला हो गया है, हरा हो गया है, इसका मतलब ये इन्फेक्शन है। तो ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई डिस्चार्ज जो आप ये देख रहे हैं कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तो ये एबनॉर्मल है, डॉक्टर के पास जाना है। तो आप ये समझते जाइए जो मैं बता रही हूँ कि नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है और अलार्मिंग क्या है। ठीक है, तो ये नॉर्मल एबनॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में। अगर ये डिस्चार्ज पूरा महीना चलता है, आपका पैंटी हमेशा गीली फील होती है, आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, आपको पैड लगाना पड़ता है, तो भी ये एबनॉर्मल है, फिर एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। कभी कभी बहुत देर तक गीला रहने से, कभी कभी बहुत जल्दी जल्दी पैड नहीं बदलने से रैशेज हो जाते हैं, थाइज में चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आपको डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर शुरुआत ही है आपको, तो इसमें आप वैसलीन, गोले का, नारियल का तेल जो होता है घर में वो लगा लें, थोड़ा वाटर रेजिस्टेंट होता है तो हो सकता है ना बढ़े। लेकिन अगर इतना है कि आपको चलने में दिक्कत हो रही है, पैंटी नहीं पहन पा रहे हैं, मतलब वाकई बुरी हालत हो जाती है, जिन लोगों ने कभी ये झेला होगा, तो ये आपको सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है, क्लीन एंड ड्राई। 2 बातें हमेशा, लड़के भी और लड़कियां भी, क्लीन एंड ड्राई, साफ और सूखा। अगर लड़कों को भी नाइट फॉल होता है, डिस्चार्ज होता है, तो सबसे पहले अपनी पैंटी को उठा के और कुछ, जब भी अगर नींद खुल जाती है जाके पैंटी को धुलने के लिए डाल दे, साफ धो के साफ अच्छी पैंटी पहने, अपने उस एरिया को साफ करके सूखा करके फिर नई पैंटी पहने। लड़कियों को भी अपना ध्यान रखना है कि हमेशा पैड साफ होना चाहिए, साफ हाथों से इस्तेमाल करना चाहिए। पैंटी, लोग सोचते हैं पैंटी का क्या है, पैंटी में निशान लग गया तो कोई बात नहीं ना, पैंटी के ऊपर तो पैड आ जाएगा, पहने रखते हैं। अरे बाबा, पैंटी अगर आपकी बॉडी से टच हो रही है, जहां पे गीलापन होगा वहां पे इन्फेक्शन होगा। जैसे अगर आप देखें ना, बरसात में वीडियो नहीं आ रहा है, अगर दीवार गीली हो जाती है तो वहां पे भी फंगस लग जाती है, वहां पे इन्फेक्शन आ जाता है। बाहर अगर आप रोटी को छोड़ देते हैं बरसात के दिनों में तो उसमें भी इन्फेक्शन लग जाता है। जहां गीलापन होगा, और ब्लड में तो इतना न्यूट्रिशन है कि कोई भी इन्फेक्शन धड़ाधड़ ग्रो करेगा। तो कहीं भी इन्फेक्शन ना बढ़े उसके लिए हमें साफ और सूखा रखना है। नेक्स्ट मैम, अगर हम पैड के बारे में बात करें तो ध्यान, जैसे पहले वाला मैम, पैड के बारे में ध्यान रखें कि हमेशा 4 to 6 आवर इसकी ड्यूरेशन है। ब्लीडिंग नहीं हो रही, मैंने तो डर से पैंटी लाइनर लगाया था, कोई बात नहीं, बार बार थोड़ी बदलेंगे, नहीं, आपको बदलना ही है। एवरी 6 आवरली पैड्स को बदलना जरूरी है। रात में सोने से पहले और सुबह उठ के तुरंत अपने पैड को बदल लीजिए, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन आपके पैड पे ग्रो कर रहा है तो वो आपकी बॉडी में चला जाएगा। तो इस चेन को ब्रेक करना है, उससे पहले ही आप पैड बदल लीजिए, ताकि इन्फेक्शन अगर थोड़ा बहुत पैड पे हो तो आपकी बॉडी तक ना जाए। तो ध्यान रखना है, पैड को 4 से 6 घंटे में बदलना है। पैंटी को हमेशा, अगर उसमें ब्लड लग गया है, पानी में भिगो के रखिए, उसके बाद उसको तेज धूप में सुखाइए। कोई क्या सोचेगा इसके लिए, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी, बिल्कुल नहीं पड़ूंगी। तो किसी को जो सोचना है सोचे, मेरे कपड़े साफ धुलेंगे, तेज धूप में सूखेंगे। पैड एक ये 5P पाउच है जो हम बच्चों को स्कूल में भी देते हैं, और मैं आप सबको बोलूंगी कि अपने बच्चों को दें, अपने पास रखें। अगर आप महिलाएं तो अपने पास इसको रखें। इसमें 5 सामान रखते हैं, सारे पी से स्टार्ट होते हैं, एक पैड, पैंटी, पेपर बैग, पेपर सोप। अगर आप गए हैं कहीं पे, आपको पिकनिक पे जाना है, मूवी में जाना है, कहीं आप ट्रेन में है, कहीं पर भी है, मेट्रो में है, आपको क्या है, आपके पास अगर ये पाउच है, या स्कूल में पहला पीरियड भी बच्चे को नहीं आया, स्कूल में आपने देख के भेजा है, तो बच्चे को सिर्फ ये पाउच उठा के अपने टॉयलेट तक जाना है, अपने पैड को यूज करना है,
पैंटी में लगाना है, मान लीजिए उसको पुराना पैड फेंकना है तो उसके पास पेपर है, रफ पेपर में फेंक डालेगा और डस्टबिन में थ्रो कर देगा। अगर उसकी पैंटी गीली हो गई है तो पैंटी को समेटेगा और पेपर बैग में डाल के वापस पाउच में डाल देगा। नई पैंटी, नया पैड लगाकर बाद में ये सब अपने हैंड को वॉश कर लेंगे पेपर सोप से। जैसे गए थे उसे साफ ही लौटे, ना कुछ गंदा किया ना कुछ गंदे हुए। तो ये जो डर है ना, पीरियड आ गया तो क्या होगा, मैं तो तैयार हूँ, मेरे पास ये सब है ना। तो अपने आप को साफ रखना, क्लीन एंड ड्राई रखने के लिए छोटी सी पहल करनी है कि अपने पास ये चीजें रखनी है। ये 5 आइटम्स आपके सामान जो है उसमें होना चाहिए। आपके बच्चे के पास ये 5 चीजें होनी चाहिए। अपने पर्स में भी रखिए, शायद किसी के काम आ जाए या आप ही के काम आ जाए। नेक्स्ट मैम, पीसीओडी के बारे में मैम अभी काफी कुछ बता चुकी हैं। बस मैं एक बात बोलूंगी, जो मैम ने बताया बहुत अच्छा लगा मुझे, कि डरना नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस से होने वाली डिजीज है। और जितना आप सोचेंगे अच्छा मुझे पीसीओडी हो गया, अब तो मुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब कुछ आपके स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आप खाने में, जैसा मैम ने बताया, जितनी चीजों का ध्यान रखेंगे, मतलब ये सिम्टम्स बताने का मतलब नहीं कि कल से ये सारे सिम्टम अपनी बॉडी में महसूस करना शुरू कर दो या बैठे बैठे करो, हाँ ऐसा तो मुझे भी लगता है, हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है। ये बताने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। डॉक्टर्स को ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि किसी भी पेशेंट में कुछ छूट ना जाए। तो इसलिए हम लोग ये याद रखते हैं, आपको तो सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है, खुश रहना है और अपने वेट पे ध्यान रखना है, वो ना बढ़ पाए। मैं पीसीओडी की पेशेंट रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि सबको इनफर्टिलिटी होगी। तो खुश रहना है और ध्यान रखना है अपना। मतलब ये सारी चीजें ये मत सोचने लगेगा कि मेरे साथ भी हो जाएंगे, तो डरिएगा नहीं बिल्कुल भी। पीसीओडी कंप्लीटली ट्रीटेबल है। बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, सारे पेशेंट को सारे सिम्टम्स नहीं होते, जैसे मैम ने भी बताया था। नेक्स्ट मैम। Okay, Dr. Surbhi, maybe we can conclude and take up the questions. काफी सारे questions आ रहे हैं तो। ठीक है मैम, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। 18 इयर्स के बाद आप एडल्ट हो जाते हो, आपके पास अपनी बॉडी के लिए अपने राइट्स होते हैं कि आपको अपने साथ क्या होने देना है, क्या नहीं होने देना। लेकिन इस सब के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब आप एकदम मैच्योर हो गए, 18 साल के बाद कुछ दरवाजा है जो खुल गया और अब आपको सब कुछ पता हो। धीरे धीरे ये नॉलेज हम एज ए पेरेंट्स भी और एज ए टीचर भी और अपने जो भी हम एल्डर्स हैं, हमें अपने बच्चों को धीरे धीरे उसकी बॉडी के बारे में बताना चाहिए। जो चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं वो उसको पता हो, ताकि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। उसको पता हो कि मैं अगर ये करूंगी तो क्या होगा, नहीं करूंगी तो क्या होगा। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, प्री मैरिटल सेक्स में अगर आप एंटर कर रहे हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक बार पता नहीं होता है और छुपाने के चक्कर में आप किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हो जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और फिर एक ऐसा एक नॉर्म बन जाता है कि देखा उसने गलती की। आप जो भी करो, जैसे भी करना है, सोच समझ के करो और ये सब आप ठीक तरह से कर सको, ये सब जिम्मेदारी हमारी है। जैसे कि हम जिस तरह के वेबिनार कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप अपने ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछो, खुल के पूछो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ताकि आपको पता हो कि आपको बताना क्या है किसी को और आपके लिए जानना क्या जरूरी है। एंड थैंक यू। मुझे लगता है कि अब हमें सवाल ले लेना चाहिए, जो भी बाकी है वो हम क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you so much, Dr. Surbhi, for always putting up a very strong voice against shame and stigma and talking very openly about things. So I'm getting many questions in the chat box. First question I would want to ask on behalf of a participant to Dr. Nishat. Dr. Nishat, may I ask you the question, please? Yes, please go ahead. Yes. So there is a question that what I have observed that many times doctor advise us to get married and have a child as soon as possible because we are suffering from one of the gynecological disorders. At times it becomes very heartbreaking and depressing because we are already suffering from a disorder, and this advice also creates a lot of mental pressure. As a practicing gynecologist, what are your views in this? Actually, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज जैसे हर स्टोरी के 2 पहलू होते हैं, आई थिंक वैसे ही इस क्वेश्चन के भी 2 पर्सपेक्टिव है, एक फ्रॉम द पेशेंट साइड और दूसरा फ्रॉम द डॉक्टर साइड। सो आई मीन बेसिकली अगर देखा जाए तो एक डॉक्टर यहाँ पे शी इज ट्राइंग टू टेल द ट्रुथ ऑफ द सिचुएशन व्हाट इट इज, कि यूजुअली ऐसा देखा गया है कि अगर वो फीमेल्स जिनमें शुरुआती दौर में लाइक
in early 20s, if they have some kind of issues such as PCOD or endometriosis, these are the kind of situations जहाँ पे fertility जो है वो long term में impact हो सकती है. तो अगर उसको उस टाइम ट्रीट नहीं किया जाए या फिर उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो बाय द टाइम दे रीच देयर लेट 20s और इन देयर अर्ली 30s, जो कि आजकल का नॉर्मल एज हो गया है फॉर गेटिंग मैरिड एंड देन कंसीविंग, तो उस टाइम तक में इट माइट अफेक्ट देयर फर्टिलिटी पोटेंशियल्स. एंड कंसिडरिंग जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में या फिर अगर आप देखो IVF ट्रीटमेंट में जो कॉस्ट है या जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है, प्लस इट्स नॉट जस्ट द फाइनेंशियल बर्डन बट द सोशल बर्डन एज वेल विच इज क्रिएटेड ऑन दोज कपल्स हु हैव टू गो थ्रू ऑल दिस. तो ये सारी चीजों को देखते हुए व्हाट डॉक्टर्स पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शी इज बेसिकली ट्राइंग टू टेल हर कि आगे चल के ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में देखा जाए तो बेटर है कि वो इफ शी इज प्लानिंग टू गेट मैरिड तो बेटर है मैरिज करके एंड देन शी कैन प्लान ऑन विद द प्रेगनेंसी. बट हाँ, ये हर इंसान का अपना एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है. लाइक ये मैरिज इज ऑब्वियसली अ बिग लाइफ लॉन्ग चेंजिंग डिसीजन. सो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर है या दबाव है. आप बिल्कुल आराम से टाइम लेके डिसाइड करें और साथ ही साथ बी अश्योर्ड कि आजकल बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज एडवांस हो गई हैं इन सब चीज़ों में. एंड just to cut off that financial burden and the mental burden which in future you might face, जिसकी वजह से doctors just trying to help you out by providing the information beforehand. She just trying to tell you कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं long term health risk में, but ये आपका अपना individual decision है. you're free to decide आपको कब शादी करनी है. ये इसकी वजह से आप बिल्कुल भी affected ना हो और अपने ऊपर pressure ना feel करें. This is my advice to you as a doctor. Thank you so much, Dr. Nishat, and very relevant question, very relevant answer कि हर एक इंसान का perspective है, उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए करेंगे हम. And second question, I think I'll take a live question from Mr. Jokhan Radhika Sharma from Central University of Odisha. Mr. Jokhan, are you there? कोरापुट से हैं जोखन जी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं. आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए. बताइए. हेलो. हाँ, आपकी आवाज आ रही है. हेलो. प्लीज आस्क क्वेश्चन. आवाज आ रही है मैम? जी, आस्क द क्वेश्चन प्लीज. हाँ ठीक है. मैम ये मैं सुरभि मैम से ये पूछना चाह रहा था कि एज ए अभिभावक, ठीक है, एज ए पेरेंट्स हम कैसे जान सकेंगे कि बच्चों में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उनके एटीट्यूड से, या क्योंकि बहुत सारे सोशल स्टिग्मा होते हैं जो बच्चे बता नहीं पाते हैं, तो हम कैसे जान पाएंगे? बात तो करना उसकी जब जानने से पहले मुझे जानना होगा ना, तब तो हम बात करेंगे कि उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है. तो अगर वैसा कोई सिम्टम हो तो आप बताएं प्लीज. Okay, so before Dr. Surbhi starts, I would ask people to raise hands so that I can take live questions. Yes, Dr. Surbhi, please answer. Thanks for asking that question. अच्छा कि आपने पूछा, क्योंकि देखिए ये मान के चलिए कि ये जो भी मैंने बोला ना, ये कुछ एबनॉर्मल या ऐसी चीजें नहीं है कि जिसमें कोई सिम्टम आएंगे. बीमारियों में सिम्टम्स आते हैं, ये कोई बीमारी थोड़ा है, ये तो नॉर्मल बॉडीली चेंजेस हैं. आपके शरीर में भी हुए, आपके बच्चे के शरीर में भी होंगे. तो ये 9 to 16 ईयर या 9 to 18 ईयर्स के बीच में ये चेंजेस आएंगे. तो आप उसको धीरे धीरे बताना शुरू करें कि बेटा कल को आपका ये जो बॉडी के साइज है, हो सकता है आपके पेनिस का साइज बढ़े, स्क्रोटम का साइज बढ़े, आपको बाल आएंगे, तो आप उसको ऐसे ही बताइएगा. कभी कभी उसको अपना एग्जाम्पल देके कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, कभी कभी तुम्हारे साथ भी होता होगा, लेकिन मुझे गलत बताया गया. कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नाइट फॉल होने से या मास्टरबेशन करने से कमजोरी आ जाती है, मसल्स नहीं बनेंगी और तुम्हें तो वीकनेस आ जाएगी, तुम तो फादर नहीं बन पाओगे. इतने सारे झूठ फैलाए जाते हैं, जबकि इसमें से एक भी सच नहीं है. मास्टरबेशन तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, और एज ए मेडिकल डॉक्टर इसमें कोई भी गलत नहीं है. पर हम वो जो बात नहीं कर पाते हैं, उससे बच्चों के मन में इतना डर, गिल्ट बैठ जाता है, उनको लगता है कि फिर वो ऐसा सोचने लगते हैं मेरे साथ ऐसा हो गया. तो जब ये वो सोचना शुरू करें, उससे पहले धीरे धीरे उसको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दीजिए. कभी इस पर नेक्स्ट कभी किसी सेशन में हम इस पर भी बात करेंगे कि अलग से कि बच्चों से बात कैसे की जाए, क्या वर्ड्स यूज किए जाए, किस तरह से उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट किया जाए, हम कितने तैयार हैं उस कन्वर्सेशन के लिए, क्योंकि बच्चे का सवाल पूछना स्वाभाविक होता है.
पर प्रॉब्लम हमारे साथ है, हम जवाबों के लिए तैयार नहीं होते, तो हम बचते फिरते हैं कि कोई बच्चा सवाल ना पूछे, तो हम थोड़ा सा कम तैयार होते हैं। तो पहले अपनी तैयारी करते हैं, फिर हम ये भी समझेंगे कि बच्चों से बात कैसे करनी है। बिल्कुल नॉर्मली बात कीजिए, कार्टून के माध्यम से बात कीजिए, कहीं कोई ऐसा सीरियल, कहीं कोई ऐसी कहानी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ कहानी में बेस्ट होता है अपने आपने किसी जानने वाले के एग्जाम्पल देके बात कीजिए उससे, और समझाइए उसको नॉर्मली। Okay, thank you so much, Dr. Subi. We may just take another live question from Mr. Asif. Mr. Asif from Hong Kong. Are you there? Okay, so maybe I'll take another question from Miss Debahuti Brahmachari. She is a professor in Delhi University. She wants to ask a question about PCOS. I have been diagnosed with PCOS for almost 5 years. So some of the symptoms are exactly the way you have described. What are the solutions to reduce its impact? Further, younger girls are nowadays detected with these issues in much extremity. Kindly suggest the measures we can follow. Dr. Nishat, if you can just briefly answer this. Thank you. Thank you for the question, Dr. Shuchi. And I think this is one of the topics which most of the women somewhere have there in their mind and heart, and they want to discuss it with someone with whom they can relate to, or with whom they can look forward to get some help. So in this kind of situation, as we have already discussed during our presentation also, that it's a lifestyle disease, right? Its cause is not yet known. तो for some disease जिसका cause ही exactly नहीं मालूम है, तो exact treatment कैसे हो पाएगा? तो basically एक lifestyle disease है, जिस lifestyle की वजह से ये problem हुई start. अगर आप उस lifestyle को change करके वापस normal lifestyle या एक healthy lifestyle में आ जाएंगे, तो जो भी problems arise हुई वो अपने आप normalize हो जाएंगी. कहने का मतलब ये है कि the hormonal imbalance which has been caused by weight gain or sedentary lifestyle or some genetic and environmental factors like stress है, especially in reproductive age group. If you see, like आजकल young adolescent girls जो हैं वो काफी ज़्यादा affected हो रही हैं, और very right in saying that it is one of the most common problems जो कि young adolescent girls आजकल face कर रही हैं. Why is it so? Because एक तो पहली बात ये कि stress level बढ़ रहा है, peer pressure बहुत ज़्यादा है, स्टडीज को लेके प्रेशर बहुत ज्यादा है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फिर एंट्री करना है, कंपटीशन देना है. तो इन सब चीजों की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस डेफिनेटली है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, और जंक फूड और खाने पीने के हैबिट्स, ये सब चीजें इतनी इजीली अवेलेबल हैं एट द डोर, मतलब आप ऑर्डर करो और सब कुछ घर आ जाता है. तो इन सब चीजों की वजह से ये सारी चीजें आपके हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही हैं. तो आप क्या कर सकते हैं इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए? फर्स्ट थिंग इज वेट रिडक्शन. वेट रिडक्शन के लिए आई नो पीसीओएस के साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है वेट रिडक्शन, बट अगर आप अपना सही डाइट लेंगे, चाहे तो आप डाइटिशियन को भी कंसल्ट कर सकते हैं फॉर पीसीओएस डाइट. साथ ही साथ एक्सरसाइज करें, जो कि मैंने कहा कि एटलीस्ट इन अ वीक 3 times a week और एटलीस्ट 30 minutes. पीसीओएस के लिए कुछ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हैं जो कि काफी हेल्पफुल होते हैं. रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जिसमें कि वेट ट्रेनिंग होता है, जिसमें आप वेट अपलिफ्ट करते हो. और सेकेंडली स्विमिंग या साइकिलिंग या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, जो कि फैट बर्न में काफी हेल्प करता है. और रिस्टोरेटिव एक्सरसाइज, जैसे इन बिटवीन आप फिलअप कर सकते हैं वीक्स को, जैसे आप स्लो वॉक करके, योगा करके, जिसमें कि आप बॉडी को काम डाउन कर रहे हैं, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली एज वेल. रिलैक्सेशन और साथ साथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो सके, आप स्ट्रेस को कोप अप कर सको. बिकॉज द फैक्टर्स आर गोइंग टू रिमेन द सेम, बट यू शुड लर्न हाउ यू गोइंग टू कोप अप विद दोज स्ट्रेस फैक्टर्स, राइट? तो ऐसा करके डेफिनेटली आपका वेट रिडक्शन होगा, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होगा, तो जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस है वो धीरे धीरे करके अपने आप सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा. आई होप आई एम हेल्पफुल इन दैट. थैंक यू. Answered, Dr. Nishat. हमारे पास एक और क्वेश्चन है, which is a very relevant question about the telemedicine systems. आज देख रहे हैं कोविड के टाइम में हमारा इंस्टीट्यूशनल एक्सेस बहुत मुश्किल हो गया है.
तो ये जो टेलीमेडिसिन सिस्टम्स हैं लाइक प्रैक्टो एंड ऑल, वो सेक्सुअल हेल्थ केयर एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के लिए कितने ज्यादा इफेक्टिव हैं, और इसके बारे में आपके क्या सजेशंस हैं? मे बी वी कैन आस्क डॉक्टर सुरभि टू टेक दिस अप फर्स्ट in couple of lines, and then we'll pose this question to Dr. Nishat. So Dr. Surbhi. Sorry, ma'am. You were asking about telemedicine. Sorry, I was engaged in the answering the questions here in the chat box. Yeah, I could see that. That's very nice, very wonderful, Dr. Surbhi. You are individually answering all the questions. Repeat the question. Sorry, I missed the question. I thought. Dr. Surbhi और Dr. Nishat, question है कि कोविड के टाइम में एक्सेस, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस बहुत मुश्किल हो गया है जैसे कि हम देखते हैं, और रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ तो वैसे भी बहुत नेग्लेक्टेड टॉपिक है। तो ऐसे में टेलीमेडिसिन जो प्रैक्टो या कुछ ऐसी चीजें हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं हैं और आपके नजर में, और अगर हैं तो हम किस तरह से अप्रोच करें ऐसे फोरम्स को? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये ऐसे टाइम पे ये तो बूंद की तरह से मुझे लग रहा है कि आ रही, क्योंकि सारी जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है उसमें आपको जरूरी नहीं है कि हर केस में आज आपको पेपर वाइज जनरल एग्जामिनेशन करना हो, या हर केस में जिससे कि आपको जरूरी नहीं कि पेशेंट को आपको सामने बैठ के देखना हो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप ऑनलाइन उसको अल्ट्रासाउंड एडवाइस कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपको मेल पे भेज सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है। तो बहुत सारा बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि ऐसे लोग जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में घर वाले भी नहीं चाहते बाहर निकले, इवन हम भी नहीं सोचते कि ऐसे लोगों को बाहर निकलना चाहिए। तो ऐसे में अगर घर पे उनके पास बीपी मेजरिंग मशीन है, वेट को अपना देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम अगर ये पूछ लेते हैं कि किकिंग आपको फील हो रहा है, किक फील कर पा रहे नहीं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे मुझे लगता है कि मैं तो इसको इतना देख पा रही हूँ। इट्स लाइक अ बून फॉर डॉक्टर ऑल्सो, क्योंकि उनको भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं हो रहा है अगर हम टेलीमेडिसिन में बैठे हैं। इवन पेशेंट के लिए बहुत ईजी है कि अपने कंफर्टेबल टाइम पे और बहुत सारी ऐसी चीजों को ये ले सकते हैं। इस मैंने जैसे पहले भी बोला, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बिकॉज ऑफ स्टिग्मा बहुत सारे लोग को ये समझ ही नहीं आता कि डॉक्टर के पास जाना कब है। इसमें मेजर रोल आपका अवेयरनेस पार्ट करता है, और जितना इस पूरे लॉकडाउन में मैंने देखा है कि जितने ज्यादा सेशंस, वेबिनार अवेयरनेस को लेकर हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कभी कभी इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो मुझे दिखाई देता है कि जो बातें हम रूटीन में नहीं कर पाते, इतने सारे लोग बैठ के कभी पीसीओएस या ऐसी चीजों के बारे में शायद नहीं जान पाते, या डॉक्टर के पास जाके नहीं जान पाते, जो आपके वेबिनार से जान रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो एक बूंद की तरह से मैं तो इसको जितना देख पा रही हूँ। निशत मैम। तो डॉक्टर सुरभि, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी बात कही कि वेबिनार्स के थ्रू हम लोग नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं, ताकि लोगों को एटलीस्ट ये पता चले कि हाँ उन्हें कब एक्चुअली डॉक्टर के पास जाना चाहिए मिलने के लिए। वो वेरी राइट इन सेइंग दैट। एट द सेम टाइम जो टेलीमेडिसिन का जो देखा जाए अभी जो ये चीज एकदम से बूम अप हुआ है ये इंडस्ट्री, इससे ये एक फायदा ये है कि पहले लोग जो हेजिटेट करते थे प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी चीजें डिस्कस करने में भी, हमेशा से कहीं ना कहीं सब ये चाहते थे कि उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें कि लोग इजीली रीच आउट कर सकें डॉक्टर्स को, अच्छे डॉक्टर्स को, जिसके थ्रू अगर उन्हें हेल्प चाहिए तो दे कैन फ्रीली कम्युनिकेट, कीपिंग देयर इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। क्योंकि क्या होता है जब आप डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हो तो घर वाले जो होते हैं ना, वो जानते हैं कि हाँ कि अब भाई जाना है हमें, तो दे नो कि अच्छा इसको कोई प्रॉब्लम है इसलिए जा रहा है। बट अगर आप टेलीमेडिसिन के थ्रू कर रहे हैं तो इवन इफ अगर आपको हेजिटेशन भी हो रहा है, आप नहीं फ्रीली होके कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने घर के बाकी फैमिली मेंबर्स, या नहीं चाहते हैं कि वो जो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो किसी और को पता चले, बिकॉज इट इज टोटली योर ओन विश, तो आप इजिली इंटरनेट पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको एडवाइस मिल सकती है। और अभी इसका ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं, एक तो टाइम की कमी होती है लोगों की लाइफ में ज्यादातर, तो इसके थ्रू ये बहुत बड़ा फायदा है। बट एट द सेम टाइम टेलीमेडिसिन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगी यहाँ पे। स्पेशली देखिए, फॉलो अप अपॉइंटमेंट के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे कि आपको पेशेंट के बारे में सब कुछ मालूम है, डॉक्टर के लिए भी कंफर्टेबल होता है। बट ऐसे केसेस जहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है, तो वैसे केसेस में डॉक्टर की भी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं कि जहाँ पे फिजिकल, मतलब जैसे कि सपोज करिए किसी को इन्फेक्शन है प्राइवेट एरिया का, जेनिटल इन्फेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पे थोड़ा जरूरी हो जाता है कि एक बार आप डॉक्टर के पास जाके एक बार आप चेकअप कराएं, जिससे कि डॉक्टर अगर जरूरत है तो सैंपल ले, और बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स तभी वो आपको एंटीबायोटिक्स या जो भी चीजें हैं प्रेस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, बट अगर आप नहीं जा पाओगे तो फिर ऑब्वियसली एक लिमिटेशन हो सकती है।
सेकेंड प्रॉब्लम, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, इन सब की जरूरत है तो उसमें ये है कि अगर अभी कोविड टाइम है, आप घर के आसपास जो भी लैब हैं आप वहां से टेस्ट करा के अपने डॉक्टर के साथ रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं। तो इसके थ्रू काफी एडवांटेजेस हैं कि आपको बार बार अननेसेसरीली हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। आप इजिली अपने डॉक्टर के साथ अपना टाइम भी बचाते हुए, अपनी एनर्जी भी बचाते हुए, और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है ये काफी ज्यादा। ग्रेट, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हियर कि टेलीमेडिसिन आपको कैसे हेल्प कर सकता है। हमारे पास है मिस दिव्या मान। मिस दिव्या मान, आर यू देयर? विल यू कम लाइव टू आस्क क्वेश्चन प्लीज? टेक्निकल टीम, यस, दिव्या मान, could you please unmute yourself? Unmute कीजिए. Yes. Ma'am, actually, I'm a student, and being curious, I was curious about to know that how people in class 12th we are given a project to do. So my project was on how the pubertal changes are occurring in girls and in boys at an early stage. So in school we conducted a survey knowing that many students are suffering from pubertal changes at an early stage. So I just wanted to know what are the reasons and how they occur, like how sudden they occurred. Like it was like when students are in 8th or 9th class, they had the menstrual cycle and pubertal changes, but now students also see it in 5th class also. Yeah, we get your question. Who do you want to pose this question to? I would like to pose this question to Surbi ma'am. Okay. So Dr. Surbi, this is probably the last question we would take, and rest of the question you can put in the chat box or mail us. We would make sure that we respond to everyone. Dr. Surbi, if you could please answer to this question. Yeah, hi Divya. जैसे कि ये बात उन्होंने बोला अभी कि सबसे पहले समझ लें कि सबसे पहले प्यूबर्टल चेंज यूजुअली 8 इयर्स पे शुरू होते हैं और 9 इयर्स, तो 9 इयर्स से पहले पीरियड्स आना वो हम कहते हैं कि अर्ली मिनार्क है, या 8 इयर्स से पहले प्यूबर्टल चेंज होना में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हम उसको बोलते हैं, तो यूजुअली 8 इयर्स के बाद शुरू होते हैं। इसमें दो चीजें हैं कि जो एक तो बच्चों का ना स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, मतलब हम पैदा होते ही बच्चे को कंपटीशन में जो डालने रखते हैं कि अब उसका बच्चा चलने लगा है, अब उसका बच्चा बोलने लगा है, वो तो जानवरों के नाम भी बता देता है। ये जो स्ट्रेस हमने अपने ऊपर और साथ में बच्चों के ऊपर भी थोपा, इसका एक बहुत ही स्कूल का टाइम, जल्दी उठना जल्दी सोना, ये लेट सोना, मतलब घर में जो कल्चर होता है, तो इसका स्ट्रेस लेवल, लाइफस्टाइल, जैसे मैम ने बोला कि लाइफस्टाइल का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर। हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी सर्केडियन रिदम पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, तो ये सारे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। तो इसका स्ट्रेस का एक बहुत सेकंड जो अडल्ट्रेशन फूड में हो रहा है, जो हम खा रहे हैं उसमें क्या जा रहा है, वो किस चीज पे ट्रिगर कर रहा है, ये जो सारी चीजें हैं, मतलब हाइपोथायराइडिज्म तो ऐसा लगता है जैसे कि ऐसी डिजीज हो गई जिसका नहीं होना अब नॉर्मल लगने लगता है, कि इतनी कॉमन है कि आप हर तीसरे बंदे का थायराइड कराओ तो उसको मतलब स्पेशली फीमेल्स में। तो ये हार्मोन जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरा जो मानना है कि जो ये फूड फैट्स है, फूड अडल्ट्रेशन है और स्ट्रेस लेवल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन सारी चीजों में। तीसरी एक जो मुझे लगता है कि पहले अवेयरनेस नहीं थी, कुछ अगर होता भी था तो वो घर के अंदर छुपा दिया जाता था। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, एक्सपोजर है, तो अगर कुछ होता है तो स्कूल में पता है, क्लासरूम में पता है, तो ये सारी चीजें पता भी चल रही हैं। मतलब कुछ परसेंट हमेशा रहता है क्योंकि तभी ये चीजें बनी है। तो पहले क्योंकि अब सारे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, सारे बच्चों का एक एक्सपोजर है, तो ये चीजें पता भी चल जाती है। तो ये तीनों चीजें हैं, पर मैं ये नहीं कहूंगी कि ये होना मतलब ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट कर ले, नहीं नहीं, ये होना गलत है, उसको सही करने की जरूरत है कि जो भी चीजें गलत हो रही है उनको ठीक करना है। तो ये मतलब जैसे मैं अगर अभी भी देख पाती हूँ अपने आसपास, क्योंकि मैं इतना ज्यादा मेंस्ट्रुएशन पे काम करती हूँ, स्कूल्स में जाती हूँ, 1 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ में मेंस्ट्रुएशन पे काम कर चुकी हूँ, तो ऐसा बहुत कॉमन नहीं है कि फिफ्थ स्टैंडर्ड में किसी को पीरियड्स आना है, 4th स्टैंडर्ड में, मगर होता है, ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं होता है। तो बहुत घबराइए नहीं बेटा, हो सकता है, मतलब कई बार फैमिली हिस्ट्री भी होती है, जेनेटिकली भी कुछ हेरिडिटरी भी होता है, तो बहुत सारे कॉजेस के हो सकते हैं। Thank you so much, Dr. Surbi, and thank you everyone for this such a wonderful brainstorming knowledge sharing session. As we reach towards the conclusion of this program,
I would like to extend sincere thanks to each one of you, especially our resource persons, Dr. Nishat Wajdi and Dr. Surbhi Singh, for such an informative knowledge sharing session. One really needs to understand how important it is to be vocal and extrovert about these issues and speaking up against any disorder or any confusions pertaining to reproductive or sexual health you have. All stakeholders need to explore the inclusive ways to, break this silence. I extend sincere gratitude to Forum for Democracy, Rotary Club of Delhi Legacy, Rotary International, Delhi NCR, and Sachi Saheli for coming together and making this webinar possible. Now, we all know how important is to talk about these issues. And very importantly, all the audience who have, the participants who have been there with us and they have shared so many views. And I could see in the chat box such a wonderful discussion going on. So we would not stop here. This will go on, and we would for the next couple of series on this topic, we would for further query and feedback and all the suggestion, we would put up the information of all the 3 organizations on the screen after we end this webinar. The third and final webinar of this sub-theme would be on 10th June. At the same time, in partnership with Police Family Welfare Society, Delhi Police, and that would be on menopause, a very important issue again, pre-menopause to menopause, managing the changing stages of life. We would attempt to reach out to people to resolve the conundrum and confusions regarding that. I would request you to encourage us by being a part of our endeavors and register for the upcoming webinars. So thank you, everyone. I would request the technical, thank you again for all your support. The technical team may kindly display the contact details and you may reach out to us, the organization, for any further query and feedback. Thank you and have a good evening.